और उस पे एक थ्योरम करी थी कि इंटीरियर ये होता है वो बेटा सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट होता है ए का, है ना। ये थ्योरम करी हुई थी। अभी एक थ्योरम और उसी सीरीज में चल रही है। तो थ्योरम क्या है ये लिखते हैं। ओके। थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम है द सेट ए इज ओपन। अगर सेट ओपन हो, द सेट ए इज ओपन, द सेट ए इज ओपन। अगर कोई सेट ओपन है तो, अगर कोई सेट ओपन है तो लेट्स इरेज इट फर्स्ट। ओके, if A is open, if and only if interior of A, interior of the set equal to A, अगर कोई सेट मेरा A अगर ओपन हो गया तो उसका इंटीरियर पॉइंट उसी सेट के इक्वल हो जाएगा। वी हैव टू शो दैट द इंटीरियर ऑफ द सेट is equal to that set if A is open. That is, so it means that we know that on the real line, according to this theorem, suppose this is a real line, because we know that R comma D is a metric space, तो real line is also a metric space. तो इसमें कोई भी अपन ओपन इंटरवल लेते हैं, लेट्स से दिस इज ओपन इंटरवल, या यहाँ कहीं 0 या 1 वॉट एवर इंटरवल यू चूज। तो ओपन इंटरवल यहाँ पे क्या होता है, ए फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन ओपन इंटरवल 0, 1। ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। इसका मतलब इंटीरियर ऑफ ओपन इंटरवल 0, 1 is open interval 0, 1 according to this theorem, because 0, 1 is an open interval, so it is an open set, so interior of open set is equal to open set according to this theorem. Okay, uh, to prove this theorem, first let me change the color for you. Let's choose green. Okay, so proof. Very important. Okay, proof. इफ एंड ओनली इफ लगा है, पहले ए को ओपन मानते हैं, ओपन मानते हैं। if A is open, first if A is open what will happen, if A is open, अगर मेरा सेट A ओपन हुआ, if the set A is open, so this implies that, this implies that it is the largest open set, it is the largest open, it is the largest open set of A, it is the largest open set of A. Okay, we have to show that, because we know that interior of A is the largest open set. This we know that this interior is the largest open subset of A. Since A is open, so A is also A open. So it means that A is the largest open set of A, because we know that every set is the subset of itself. So this property, this subset property is the reflexive. So A, every set is the subset of itself. So not proper. So it is the largest open set of A. When it is the largest open set of A, so this implies that, this implies that A is contained in interior A. Why? Why? Why this happen? Because interior A is the largest open set. Here A is the largest open set, but interior already proved that interior A is the largest open set.
So A is the subset of interior of A, because and we also know that interior of A, there is no confusion, interior of A is also the subset of this A. Interior of A is the largest subset of A. So by combining these two, by this theorem, it is the by this statement, it is the largest open set of A. अगर ये सबसे बड़ा ओपन सेट है तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा, ये तो A इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ A, A इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ A. ओके, A इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ A. कन्वर्सली अगर हमें A इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ A मान लेते हैं तो प्रूव करना है A ओपन है. कन्वर्सली if A is equal to interior of A, if A is equal to interior of A, since interior of A, we have to show that if A is equal to interior of the interior of A, यहाँ पे लिख लेते टारगेट, we have to show that we have to show that A is open. We have to show that A is open. Since interior of A is the largest open set, is the largest open set. So this implies that A is open, since interior of A is open. A is open, hence proved. Okay, hence proved. This is very easy theorem, not this. ये पूछा भी गया है, एक बार आया हुआ था लखनऊ में. ये यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये 2013 में आई हुई थी ये थ्योरम. बहुत आसान सा है, कुछ करना नहीं है इसमें, है ना. चलिए यहीं पे इसी सीरीज में दूसरी थ्योरम करते हैं. लेट मी चेंज द पेज. ओके, नो, दिस अनदर वन. ओके, to write the theorem, first change the color. Okay, second next theorem, ओपन सेट पे ओपन सेट की थ्योरम कर रहे हैं इसी सीरीज में. नेक्स्ट थ्योरम है इंटीरियर ऑफ ए. we have to show that interior of A intersection interior of B, it is equal to interior of A intersection B. We have to show this. Okay, okay, first to prove this, first change the color. Let's say choose blue, not dark blue. Proof. So टू प्रूव दिस, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक पॉइंट यहां चूज करूं, मैं दिखा दूं वो पॉइंट यहां है, मतलब ये जो है पूरा इसका सबसेट हो जाएगा. फिर मैं यहां एक पॉइंट चूज करूं, यहां दिखा दूं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा. तो इस प्रकार से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. लेट x be any point belongs to interior of A intersection interior of B. Since x is any point belongs to the intersection of both, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में है तो इसका मतलब ये हो गया x मेरा इंटीरियर A में भी होगा एंड x बिलोंग्स टू इंटीरियर B में भी होगा. ओके, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में है
तो यहां से चूंकि x इंटीरियर ए में है, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि इसको सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बनाएंगे, वो ओपन स्फीयर ए के अंदर होगा। चूंकि एक्स बी में है, तो इसको सेंटर मान के एक और ओपन स्फीयर बनाएंगे, वो भी मेरा बी में होगा। चूंकि एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है, एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट है, तो इस so this implies that x is an interior point of A and x is an interior point of B. Okay, so this implies that there exists R1 positive such that yes, R1x must be the subset of A, and similarly there exists R2 positive such that SR2 X is a subset of B. ओके, क्योंकि हमारे पास दो ओपन स्फीयर हैं, एक ओपन स्फीयर ये है, एक ओपन स्फीयर ये है, और एक ओपन स्फीयर ये है। एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2 है, दो में से कोई ना कोई रेडियस बड़ी या छोटी होगी। थोड़ा सा इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकली बता रहे हैं, एक मतलब ऐसे ही ग्राफ बना के समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। तो ये मेरा मान लेते हैं x, डी मीट्रिक स्पेस है, ठीक है ना। कोई ना कोई इन दो स्फेयर बना लेते हैं, कोई ना कोई एक स्फेयर बड़ा होगा, कोई ना कोई छोटा होगा। तो मान लेते हैं ये एक स्फेयर R1 बड़ा है, R2 छोटा है, कैसे भी मान लेते हैं। मान लो एक स्फेयर ये बना हुआ है, ओपन स्फेयर है, दूसरा ओपन स्फेयर ये बना हुआ है R1 R2, कोई ना कोई बड़ा होगा, ठीक है ना। इन दोनों, एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2 है, एक छोटे वाले की रेडियस R1 मान लेते हैं, किसी की भी कोई ना कोई R1 या R2 में से छोटी होगी। जो छोटी होगी वो छोटे स्फीयर की रेडियस है, और बड़े वाले बड़े रेडियस की, बड़े स्फीयर की रेडियस है। तो इन दोनों के मिनिमम लेके, इन दोनों रेडियस का मिनिमम लेके एक स्फीयर बनाते हैं, जो ऑफ कोर्स बना लेते हैं ये वाला है। ये कौन है? ये R1 रेडियस R2 रेडियस का मिनिमम लेके जो स्फीयर आया उसका रेडियस, उसको रेडियस मान के एक स्फीयर ये बनाया गया। सेंटर तीनों का एक्स ही है। तो यहां से ये क्लियर हो गया। अगर मैं एक आर बना लेता हूं, लेट आर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 कामा R2, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं आर कंसीडर करूंगा, तो यहां से ये हो जाएगा कि इस आर रेडियस का स्फीयर, सेंटर इसका एक्स ही रहता है, ये ऑफकोर्स SR1 में भी होगा, SR1 एक्स में भी है, और साफ साफ दिख रहा है ऑफकोर्स ये वाला SRX जो है वो दूसरे स्फीयर में भी है ना, क्योंकि दोनों की रेडियस का मिनिमम लेके बनाया गया। तो ऑफकोर्स ये दोनों SR वाला, SRX वाला ये स्फीयर, ये SR1 एक्स में भी होगा, SR2 एक्स में भी होगा। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ से। तो क्योंकि ये स्फीयर है, ये ए के अंदर है, तो ये वाला स्फीयर भी ए के अंदर होगा। तो दिस SRX is a subset of A, and similarly SRX is a subset of B. Okay, so this implies that क्योंकि SRX A में भी है, B में है, तो दोनों के इंटरसेक्शन पोर्शन में चला जाएगा। SRX is a subset of A intersection B. तो चूंकि x मैंने पॉइंट जो लिया था इंटीरियर है, इंटीरियर बी में लिया हुआ था। अब चूंकि एक ऐसा स्फीयर मिला है, x को सेंटर मान के एक ऐसा स्फीयर मिला है जो a इंटरसेक्शन b में है, इसका मतलब ये हो गया x जो है, तो x इज एन इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है, इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। So this implies that x belongs to interior of A intersection B.
ओके डन। तो x मैंने वहाँ इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी में माना था, और ये आ गया इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी, दिस इज द सबसेट ऑफ इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो वन साइडेड प्रूफ्ड। अब इसका कन्वर्सली प्रूफ करते हैं, इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी में एक पॉइंट लेंगे और उधर प्रूफ करेंगे। ओके, लेट्स चेंज द पेज। सो कन्वर्सली कन्वर्सली अब क्या करेंगे, लेट बाई बी एनी पॉइंट बिलोंग्स टू द इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट बाई इज एन इंटीरियर पॉइंट, बाई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A intersection B. Okay, so this implies that there exists R positive such that SR by is the subset of A intersection B. ओके, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट है तो बाई को सेंटर मान के एक स्फीयर बनाया जा सकता है, वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा, क्योंकि बाई क्या है, बाई इंटीरियर पॉइंट है ना। तो जब ये इंटरसेक्शन बी में होगा, ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब ये दिस इंप्लाइज दैट SR by is the subset of A and SR by is the subset of B. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज है, क्योंकि ये बाई ए के अंदर पॉइंट था, बाई कहाँ पॉइंट था, ए के अंदर पॉइंट था, अब उसको सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बनाया गया जो ए का सबसेट है, मतलब बाई जो है ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया, और यहां से सिमिलरली बाई जो है वो बी का पॉइंट हो गया, बी का इंटीरियर पॉइंट हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट बाई belongs to interior of A and by belongs to interior of B. So this implies that by belongs to interior of A intersection interior of B, दोनों में है तो intersection portion में भी होगा। So this implies that interior of A intersection B में हमने पॉइंट माना था और इधर यहां आ गया, तो दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इंटीरियर A intersection इंटीरियर B फ्रॉम 1 and 2, ये प्रूफ हो गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे ओके इधर प्रीवियस में था जो ये, इसको मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल हो गया, इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी। ओके, यही शो करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, आज का लेक्चर ये वाला यहीं पे स्टॉप करते हैं।